تو آج اس چینل کے اوپر جو میری پہلی ویڈیو ہے وہ اس خطے کی ایک معروف عالم دین ہے اور جو اپنے مستقبل کے جو پیشن گوئیاں ہے اس کے حوالے سے کافی مشہور اور معروف ہے. جس کے نام سے آپ لوگ باخبر بھی ہوں گے اور اس کا نام ہے نعمت شاہ ولی رحمہ اللہ. اس کی پیشنگوئیوں کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہماری جو ویڈیو ہے یہ بن رہی ہے. آپ رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم دین اور اللہ کی ولی ہے جو اپنی پیشنگوئیوں کے حوالے سے مشہور ہے. اور آپ رحمہ اللہ جو ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی اولاد میں سے ہے. آپ کی جو وفات ہے وہ 1884 عیسوی میں ہوئی ہے اور آپ کی بہت ساری پیشنگوئیاں ہیں جو کہ ہم تک نہیں پہنچ سکی یا جس کو لوگوں نے قلم بند نہیں کیا یا وقت کے حساب سے وہ کیا ہو گئی ہے مطلب لوگوں سے مس ہو گئی ہے اور لوگوں تک وہ صحیح پہنچی نہیں ہے. لیکن کچھ ایسی پیشنگوئیاں ہیں جو کہ شاید اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے یوٹیوب یا میڈیا کے پہ آپ لوگوں نے سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی اور اسی کے حوالے سے انشاءاللہ آج جو میرا ویڈیو ہے وہی بنا رہا ہوں. تو پہلے پیشنگوئی میں اپنا نعمت شاہ ولی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں کہ دنیا میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا اور اس کا نام تیمور ہوگا جو اس دور کا سب سے بڑا حکمران ہوگا اور اس کی افغانستان، ایران، ہندوستان اور ترکی پر حکومت بھی کی. اور ترکی پر تو اس نے حملے کی ہے لیکن جو ایران، ہندوستان وغیرہ ہے، افغانستان ہے، یہ والا جو خطہ ہے یہاں پر اس نے کیا کیا حکومت بھی کیا. دہلی کو اس نے کافی دفعہ فتح کیا اور یہ بادشاہ تاریخ میں تیمور لنگ کے نام سے مشہور ہے. اور یہ جو اس کی جو اس وقت قبر ہے وہ جو ازبکستان کا شہر ہے غالباً سمرقند میں ہے یا بخارے میں ہے لیکن غالباً اس کا جو قبر ہے وہ سمرقند میں ہے. اور اس کو ازبکستان کی جو ہے نا بہت بڑی جو پرسنالٹی ہے وہ مانی جاتی ہے کیونکہ یہ بہت بڑے بادشاہ تھے. تو اس کی ایک پیشنگوئی ہے جو پوری ہو چکی ہے. اس کی جو دوسری پیشنگوئی تھی وہ بابر بادشاہ کے حوالے سے تھی کہ اس کے بعد بابر بادشاہ بنے گا اور اس کے بعد دہلی کے تخت پر قابض ہوگا. یعنی بابر پہلے کابل کا بادشاہ بنے گا اور اس کے بعد وہ کیا کرے گا دہلی کے تخت پر قابض ہو کر پورے ہندوستان کا والی بن جائے گا. تو بابر بیسیکلی فرغانہ میں پیدا ہوا تھا. اس کے بعد سمرقند کا حکمران یہ بنا اور وہاں سے جو اس کے اپنے جو رشتہ دار وغیرہ تھے، جو چاچے وغیرہ تھے، انہوں نے اس کو وہاں سے بھگا دیا اور پھر اس نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے کابل کے اوپر قبضہ کر لیا. کیونکہ ازبک لوگ بیسیکلی مغل ہے، جو ازبک لوگ ہیں یہ کافی جنگجو لوگ ہیں. تو انہوں نے 1504 عیسوی میں کابل کو فتح کیا اور پھر کابل میں اپنا لشکر بنا کے 1525 عیسوی میں جو پانی پت کے میدان ہے وہاں پر جو ابراہیم لودھی ہے، یہ جو ابراہیم لودھی ہے یہ بیسیکلی جو سکندر لودھی تھے جو افغان حکمران تھے یہ اس کے بیٹے تھے اور اس کو شکست دیکھ کر جا کے تخت پر قبضہ کر لیا. اچھا، تیسری پیشنگوئی میں پھر آپ بات کر رہے ہیں کہ پھر ذات باری تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے بادشاہت ہمایوں بادشاہ تک پہنچے گی اور اس دوران قدرت کی طرف سے ایک افغان ظاہر ہوگا. ہمایوں جو تھا یہ بابر کا بیٹا تھا اور بابر کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد اس کا جو بیٹا تھا ہمایوں وہ تخت نشین ہوا. اس کا ایک جنرل تھا، افغان جنرل تھا، پٹھان تھا، اس کا نام تھا شیر شاہ سوری. تو شیر شاہ سوری نے پھر ہمایوں کو شکست دے کے، ہمایوں کے خلاف بغاوت دے کے اس سے پورے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا. جو موجودہ پاکستان ہے اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا اور اس طریقے سے جو ہمایوں تھا وہ ہندوستان سے بھاگ کے ایران چلا گیا. پھر جو شیر شاہ سوری اور اس کا جو خاندان تھا اس کی جو اولاد تھی تقریباً 45 سال تک انہوں نے ہندوستان کے اوپر حکومت کی. اور جو شیر شاہ سوری تھا یہ بیسیکلی بہت ہی ذہین آدمی تھا، انتہائی ذہین تھا. یہ جو شیر شاہ سوری تھے یہ بابر کے ساتھ بھی تھے دہلی فتح کرنے میں، ہندوستان فتح کرنے میں، اور اس کے بعد اس کے بیٹے کے ساتھ بھی تھے. لیکن جو بابر کا بیٹا تھا ہمایوں بیسیکلی وہ اتنا ذہین نہیں تھا تو شیر شاہ نے اس سے جنگ کر کے اس سے جو بادشاہت تھی وہ چھین لی اور پورے ہندوستان کا بادشاہ بن گیا. اور اس نے تقریباً 2 سے 3 سالہ میں پورے ہندوستان میں امن قائم کیا. اور جو جی ٹی روڈ اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اس نے ڈھاکہ سے لے کر کابل تک کی پورا روڈ تقریباً 2 سال کی محنت میں اس زمانے میں جا کے اس کو بنا لیا. اور سننے میں آ رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں اس حوالے سے کہ ہر کلومیٹر یا کچھ کلومیٹر کے بعد جا کے شیر شاہ نے سرائے بھی بنائی جہاں پہ لوگوں کے لیے پانی، مسجد اور جو رات گزارنے کے لیے جگہ تھی. پہلے زمانے میں کاروان چلتے تھے، لوگ جو مطلب گدا گاڑیاں ہے اور گھوڑا گاڑی ہے ان کے اوپر جو سامان وغیرہ ہے وہ جا کے لا کے
तजारत करते थे। तो शेर शाह ने ये भी बनाया था। इसके अलावा जो हमारे जो करेंसी है रुपए, इसको शेर शाह ने जारी किया था हिंदुस्तान में। और शेर शाह ने जो है ना, जो ज़मीनों का निज़ाम था हिंदुस्तान में, वो इसने बना लिया इंतहाई ज़बरदस्त। और इसके अलावा जो शेर शाह ने जो नहरी निज़ाम है हिंदुस्तान का, ये भी शेर शाह सूरी ने बना लिया था। और ये भी कहा जा रहा है कि जो शेर शाह सूरी है बेसिकली इसने ऐसा ज़बरदस्त निज़ाम अदल बनाया था कि अगर कोई आदमी ऐसा होता था जो मजलूम होता था और उसकी दादरसी नहीं होती थी, तो वो एक मखसूस लिबास पहनता था। तो शेर शाह ये समझता था कि भाई जिसने अगर इस तरह लिबास पहना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल येलो कलर का, तो वो भी मजलूम है। और उसको फिर बुलाता था अपनी मखसूस जगह के ऊपर, यानी महल के ऊपर, जहाँ पे फिर उनसे पूछताछ होती थी। तो फिर उसकी जो भी मसले मसाइल होते थे वो हल हो जाते थे। इस तरीके से उसने एक जंजीर बनाई थी कि अगर तू उस जंजीर को जाके मूव करे, यानी उसको खींचे, तो शेर शाह के पास उसका पैगाम पहुंचता था। और इस तरीके से उसने पूरे हिंदुस्तान में 2 से 3 साल में पूरा अमन कायम कर लिया था। उसके बाद चौथी पेशनगोई में आप ये कह रहे हैं, जो ऑलरेडी हो चुकी है पेशनगोइयाँ, कि हुमायूं दोबारा हिंदुस्तान की तख्त पर कब्जा कर लेगा और इसके बाद अकबर एक बड़े बादशाह की हैसियत से उभरेगा। तो हुमायूं ने फिर क्या किया कि जो शेर शाह इस दुनिया से चले गए, फिर उसका बेटा था, मेरे ख्याल पे उसका नाम था इस्लाम शाह सूरी। तो इस्लाम शाह सूरी उसके बेटे का नाम था। और उसने शिकस्त दे दी हुमायूं ने। हुमायूं मिल गया था ईरान का जो बादशाह था तहमासप, उसके साथ, और तहमासप ने फिर उनकी मदद की और फिर उन्होंने ईरानी फौज की मदद से आके दोबारा हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। और उसके बाद जो उसका बेटा हुआ जलालुद्दीन अकबर, और जो कि पैदा हुआ था 1556 ईस्वी में, सॉरी डेट ऑफ बर्थ उसकी अलग है, लेकिन जलालुद्दीन अकबर ने 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक पूरे हिंदुस्तान के ऊपर इसने हुकूमत की। और इसने बहुत ही तवील अरसा हुकूमत की, और मतलब इसकी तकरीबन पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कंट्रोल था जलालुद्दीन अकबर का। अच्छा, यहाँ पर नेमत शाह वली रहमहुल्लाह की पेशनगोइयाँ, ये वो वाली पेशनगोइयाँ थी जो आज से पहली मतलब हो चुकी है, जो गुजर चुकी है। अब कुछ पेशनगोइयाँ आप रहमुल्लाह की इस तरह से है जो कि आने वाले मुस्तकबिल में पॉसिबल है कुछ अभी चल रही हो, और पॉसिबल है कुछ पेशनगोइयाँ ऐसी है जो कि आने वाले मुस्तकबिल में वो नमूदार होगी। तो मुस्तकबिल की पेशनगोइयों के हवाले से आप रहमुल्लाह ने लिखा है, मतलब अपने अपने कशाफात में कि आप की उम्मत से बेहद मुजरिमाना फेल सरजद होंगे। यानी जो इस वक्त उम्मत मुहम्मदिया है वो बहुत ही मतलब तंजली का शिकार हो गई है। आप लोग वाज़ेह तौर पर देख सकते हो कि गज़ा में मतलब क्या हो रहा है। पूरी दुनिया के मुसलमानों के पास दौलत मौजूद है, लेकिन गज़ा में कोई मुसलमान नहीं बोला। यहाँ तक कि उन गरीब बच्चों के लिए किसी ने मतलब एड वगैरह तक नहीं पहुँचाई। और पाकिस्तान में यहाँ तक कि आप उनके मतलब हक में और इसराइल के मुखालिफ में आप कोई मुजाहरा वगैरह भी नहीं कर सकते। इस तरीके से कश्मीर में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के जो कबायली इलाके हैं उनमें क्या हालत जंग है, यमन के अंदर क्या हो रहा है और कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है बेसिकली। तो ये क्या है बेसिकली, हमारा जो इस वक्त हुक्मरान है, जो मुसलमान हुक्मरान है, बेसिकली वो तंजली का शिकार हो गए हैं। और इसी के अंदर ही आप रहमुल्लाह का जो पॉइंट नंबर 2 था कि खाइन लोग हुक्मरान बन जाएंगे।
यानी वो उम्मत के साथ खयानत करेंगे, यानी वो अपनी जेबें भर रहे हैं, लेकिन उम्मत में क्या हो रहा है आजकल जो गजा में, कश्मीर में, यमन में और कबायली इलाकों पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है। आपने देख लिया कि बर्मा के जो मुसलमान थे वो कश्तियों में समंदर में घूमते थे, लेकिन कोई जो मुसलमान मुमलिकत है वो उनको पनाह भी नहीं दे रही थी। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि जो हुक्मरान है हमारे वो खाइन हो गए हैं, उनको सिर्फ अपनी फिक्र है और उम्मत की कोई फिक्र नहीं है। तकरीबन ये पेशनगोई भी अगर हम आजकल के दौर को देख लें तो ये इसकी पूरी हो गई है। बाकी अल्लाह के मवेशी माफ़ करे। इसके बाद तीसरी पेशनगोई में आप रहमुल्लाह फरमा रहे हैं कि जब जुल्म का रिवाज होगा तब मगरिब का बादशाह उनको दफा करने के लिए हुकूमत की बागडोर संभालने के लिए जाहिर होगा। अब ये वो ऐसी पेशनगोई है बेसिकली जिनके बारे में बहुत सारे लोग कह रहे कि इस वक्त जो मगरबी पाकिस्तान है हमारा, मतलब जब पाकिस्तान को लख्त हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान मतलब दो टुकड़ों में बढ़ गया, एक बांग्लादेश, एक हमारा ये पाकिस्तान। तो बांग्लादेश को हम लोग पहले कहते थे मशरकी पाकिस्तान और हमारे इस पाकिस्तान मौजूदा पाकिस्तान को हम लोग कहते थे मगरबी पाकिस्तान। तो यहाँ से कुछ लोगों ने ये अखज़ किया है कि पॉसिबल ये हमारा पाकिस्तान हो जिसमें इन फ्यूचर अच्छे और नेक लोग जाहिर हो जाएंगे जिन पे अल्लाह का फजल होगा। अल्लाह का फजल अल्हम्दुलिल्लाह अब भी है, लेकिन अल्लाह ताला जो हमारे हुक्मरान है इनको तब्दील करके इनकी जगह पे नेक और सालेह जो हुक्मरान है वो जाके पाकिस्तान को नसीब करे, ताकि पाकिस्तान के मुसलमानों को दीन इस्लाम के सही रास्ते के ऊपर यानी सिरात मुस्तकीम के ऊपर उनको चलाए। तो इसके बारे में अपना नेमत शाह वली रहमतुल्लाह ने लिखा है कि मगरिबी मुसलमानों पर ज़ाते। तो इसके बारे में शाह नेमत वली रहमतुल्लाह ने लिखा है कि मगरिबी मुसलमानों पर ज़ाते बारी ताला का फजल होगा और उनके यहाँ ईमानदार, काबिल और लायक काम करने वाले मर्दान हक जाहिर होंगे। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। अच्छा, चौथी जो पेशनगोई है वो बहुत ही बड़ी मतलब जंग वाली है, ख़तरनाक है। उसके बारे में आप रहमुल्लाह ने लिखा है कि चित्राल, नानगा पर्वत, गिलगित और चीन से जो मुल्क का इलाके है जो इलाका जात है और तिब्बत में एक जंग जो है ना वो लड़ी जाएगी। तो आजकल आप लोग देख रहे हो कि जो हमारा चित्राल है, मलाकंड वगैरह है और जो कबायली इलाके है बेसिकली दीर वगैरह और उस तरफ कश्मीर को आप देख सकते हो। तो यहाँ पर तकरीबन एक जंग की सूरत हाल है। इंडिया तकरीबन अपनी जो अफवाज है वो पाकिस्तान के बॉर्डर से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पे उन्होंने अपनी जो पूरी लाइव लश्कर है वो लेके बैठे हुए हैं। और आजकल जो करंट अफेयर चल रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के बारे में या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं जंग के हवाले से, धमकियों के हवाले से, तो वो तो आप सबके सामने है। इसके अलावा जो है 5वें नंबर पे ये कह रहे कि मुल्क हिंद में एक फितना पैदा होगा। गाज़ियान इस्लाम ईरानी जिहाद लेकर उठ खड़े होंगे। ईरान, तुर्क और खुरासान के मुसलमान मर्दाना वार इस जंग में हिस्सा लेंगे और इंडिया को फतह करेंगे। यहाँ पर अपना शाह नेमत वली रहमुल्लाह ने लिखा है कि हिंदुस्तान के अंदर एक फितना बर्पा होगा और वो फितना क्या होगा उसकी डिटेल उसने नहीं बताई। भी पॉसिबल है कुछ भी हो सकता है, कोई धमाका वगैरह हो सकता है, वल्लाहु आलम। लेकिन उस सूरत में फिर जो हिंदू होंगे वो मुसलमानों के ऊपर टूट पड़ेंगे। पॉसिबल है इस तरफ पाकिस्तान के ऊपर भी हमला करे या पॉसिबल है जो हिंदुस्तान के मुसलमान है इस वक्त जो मौजूदा हिंदुस्तान है उनके ऊपर कोई वो जुल्म और ज़्यादती करना शुरू कर देंगे। तो उस सूरत में फिर जाके जो हमारे मुसलमान हैं वो इनकी मदद के लिए आएंगे और फिर जो कि मर्दानावार जाके इंशाल्लाह जिहाद होगा। और यहाँ पर एक और पेशनगोई ये लिखी गई है कि जो अटक का दरिया है वो 3 दफ़ा खून से, काफिरों की खून से 3 दफ़ा लाल हो जाएगा। अब ये जो पेशनगोई है अटक का दरिया की, इससे वाज़े जो मौजूदा अटक है वो मुराद है या अटक बेसिकली जो अटक का दरिया है ये बेसिकली कहा जाता है उसको दरिया सिंध को कहा जाता है कि इससे दरिया सिंध मुराद है कि उस तरफ से अगर इंडिया ने हमला कर दिया तो बीच में पाकिस्तान और इंडिया की जो मतभेड़ होगी तो इससे जो दरिया है ये कुफा के खून से लाल हो जाएगा या इससे ये मुराद है। इसका हम हतमी नहीं कह सकते, लेकिन जो अटक का दरिया है उसके बारे में तो बात की गई है कि अटक का दरिया 3 दफ़ा कुफार के खून से लाल होगा। और उसके बाद जो है ना शाह साहब ने लिखा है कि उसके बाद मुसलमान जाके लाहौर को फतह करेंगे
दिल्ली को फतह करेंगे, बजनूर को फतह करेंगे। और जो हिंदुस्तान के इलाके है दोआब बेसिकली जो गंगा और यमुना या जमुना और यमुना कोई इनके दो दरिया है, इनके बीच का जो इलाका है बेसिकली उनको दोआबा कहते हैं। ये पुराने ज़माने का नाम था और आजकल जो ये पुराने ज़माने का नाम था और आजकल जो उत्तर प्रदेश का इलाका है जिसको यूपी कहते हैं, बेसिकली ये दोआब के अंदर ही आता है। तो दोस्तों ये हमारे पास जो है ना एक इंफॉर्मेशन थी शाह नेमत वली रहमतुल्लाह की, तो हमने आपको बता दी। और ये हतमी बातें नहीं है, ऐसी बातें नहीं है कि ये बिल्कुल कोई कुरान और हदीस है, ये एक वली की इंकशाफात है और ये तकरीबन 900 साल पुरानी बातें हैं जो कि अभी कलम बकलम लोगों के पास आ रही है, लेकिन कुछ इसमें गायबी है, यानी कुछ किताब का जो हिस्सा है वो बेसिकली नापैद हो गया है, जो कि ज़ाया हो गया है, और कुछ जो बेसिकली भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन ये जो बात है बेसिकली हतमी नहीं है, ये एक राय है, लेकिन मौजूदा तनाज़ुर के हवाले से आप इसको चेक कर सकते हैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं। इसका जो असल मेन मकसद है वो ये है कि मुसलमान जो अपनी सफ़े है वो मजबूत करे और मुस्तकबिल का ख्याल करे, क्योंकि दुश्मन जो हिंदू दुश्मन है, जो पनिया दुश्मन है, वो हमारे सरों के ऊपर कड़ा है। और जो इनके जाल के लोग हैं, जो मुसलमानों के अंदर इनके दोस्त बने हुए हैं इन हिंदुओं के, और उनसे भी बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है और इंशाल्लाह मज़ीद में इस तरह के जो वीडियोज़ है वो बनाऊँगा फ़िक़्ह के हवाले से, तो आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें लाजमी। और इसके अलावा मेरे चैनल के ऊपर इंशाल्लाह आप लोगों को करंट अफेयर भी मिलेंगे, और जो मौजूदा हालात हाज़िरा के हवाले से है, सियासत के हवाले से है, या जो जंगों के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इस चैनल के ऊपर शेयर की जाएगी। वीडियो में अगर कोई कमी पेशी है तो वो आप बता दें, मज़ीद आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए वो आप बता दें, ताकि आपके लिए हम इंशाल्लाह जो कंटेंट है वो क्रिएट कर सके। तो मुझे इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।